Student, today we will start from question number 4. This is the question number 4. Construct a quadrilateral PQRS when PQ is equal to 4.5 centimeter, QR is equal to 6 centimeter, angle P equals to 60 degree and angle Q equals to 120 degree and angle R is equal to 45 degree. Okay, students. So we will draw PQ first of all, because this is the PQ, line PQ. Okay, line segment, draw a line segment PQ 4.5 centimeter. 4.5 centimeter. Okay, this is the line segment of 4.5 centimeter and angle P equals to 60 degree. Draw a angle of 60 degree like this. Okay, draw a ray of PX and angle Q 120 degree. At Q 120 degree angle, draw a 160 degree and that 120. This is the 120 degree angle. Okay, this is the angle 120 degree, angle Q, angle P equals to 60 degree. Okay, students. Now QR 6 centimeter. Draw an arc of 6 centimeter from Q like this. Okay, this is the point R and angle R is equal to 45 degree. You can make an angle of 45 degree like this, 60 degree and then इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास 90 डिग्री होगा. अब 90 डिग्री एंड 60 डिग्री का जस्ट हाफ, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री के लिए 90 डिग्री एंड 0 डिग्री से इसका बाइसेक्ट करेंगे तो ये बाइसेक्टर यहाँ मिलेगा आपको. इसको ड्रॉ करेंगे. ओके, दिस इज द रे बाई एंड जॉइन दिस पॉइंट. ठीक है ना, दिस रे, this is the point S. Okay, this is the required construction. Okay, students, this is the question number B, part of question number 4. PQ 3.5, QR 6.5, angle P 75 degree, angle Q 105 degree and angle R is equal to 120 degree. Okay, students, first of all we draw PQ same as A part, P and Q, line segment of 3.5 centimeter, making an angle of 75 degree at P like this, 90 degree and 75 degree 60 and 90 का जो बाइसेक्टर होगा वो 75 डिग्री होगा. ड्रॉ एन अरे X. Okay, same you can draw the 105 degree angle at Q like this. This is the angle 90 degree and the bisector of 120 and 90 degree. You can draw the angle of 105 degree. Okay, like this. This is the ray QY and QR equals to 6.5. Draw an arc of 6.5 radius यहाँ से at Q, from Q, this is the point R and at R you can draw 120 degree angle like this. This is the point S. Okay, student, this is the required quadrilateral 45 degree. Okay, same you can do the C part and D part by yourself. Do yourself. Okay, students, this is the question number 5. Construct a quadrilateral ABCD. Okay, students, when
बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 45 एंड बी angle B 45 degrees. First of all, we draw a rough sketch of this quadrilateral. Okay, A B C D. A B C D. रफ स्केच हम ड्रॉ करेंगे जिसमें AD की वैल्यू आपके पास 4 दे रखा है और AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है. ओके स्टूडेंट्स, और CD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है एंड BC इक्वल टू 4.5 और एंगल B पर 45 डिग्री का एंगल है लाइक दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द लाइन सेगमेंट AB और लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर एट B. ड्रॉ an angle of 45 degree like this. First of all, we will make the 90 degree angle like this and bisect this angle like this from here and this. यहाँ से और एक यहाँ से पॉइंट से आपको इसको बाइसेक्ट करते हुए रे ड्रॉ करनी है. ओके ओके स्टूडेंट्स, आपको इतना रे ड्रॉ करने के बाद स्टूडेंट्स फ्रॉम बी से यहाँ सी पॉइंट आएगा. जैसे सी पॉइंट आया है तो आपको पास यहाँ से बी सी 4.5 का एक आर्क लगाएंगे या फ्रॉम बी इस पॉइंट से आप एक आर्क लगाएंगे जो सी जो कितना है वैल्यू 4.5 का एक आर्क लगा लिया. दिस इज द पॉइंट सी. ओके, नाउ अनदर आर्क फ्रॉम सी डी यानी 3 सेंटीमीटर का आप एक रेडियस लेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से. ओके, अब आपके पास यहाँ पॉइंट आने वाला है डी. तो ए डी का जो वैल्यू होगा वो 4 सेंटीमीटर का. तो ए से लेकर 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगाएंगे इस तरीके से. इसको इससे ज्वाइन करेंगे और इसको इससे ज्वाइन करेंगे. ये 45 डिग्री का एंगल हो गया. अब आपके पास इसकी डायमेंशन नोट करनी है 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज द 3 सेंटीमीटर और दिस पॉइंट इज डी. This is the required construction. Okay, students. Students, this is the question number 5, part B. In this question, we have to construct a quadrilateral ABCD. In this quadrilateral AC equals to 2AB equals to 5 centimeter. I means to say AC value of AC is equal to 5 centimeter. Okay. AC का जो वैल्यू है 5 सेंटीमीटर है और जैसे कि जानते हैं आप लोगों को दिया गया AC, AD एंड CD इक्वल है. मीन्स AC की वैल्यू 5 है तो AD की भी वैल्यू 5 होगी. ओके, सेंटीमीटर एंड CD की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी. ओके स्टूडेंट्स, अब दिया 2AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो 2AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए बी इक्वल टू हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर. जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 2.5 सेंटीमीटर. मीन्स ए बी की जो वैल्यू हो गई वो 2.5 सेंटीमीटर हो गई. ओके, एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल दिया है तो सबसे पहले हमें वो लाइन ड्रॉ करनी होगी जिसमें पॉइंट बी दिया होगा. तो हमारे पास बेस में ये पॉइंट बी है तो ए बी को हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले इस तरीके से ए बी. रफ इसके सब तैयार करेंगे. बी पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. इसको लेते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे. और हमारे पास बी सी यहाँ से आएगा बी सी. तो बी सी हमारे पास दिया नहीं है इसमें तो हमारे पास, लेकिन यहाँ पॉइंट तो आने जा रहा है सी. तो ए सी की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर. तो ए से लेकर एक आर्क लगाएंगे यहाँ इस तरीके से. तो यहाँ हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा सी पॉइंट. ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास सी डी जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया यहाँ से. जितना यहाँ था उतना ही यहाँ से हमने आर्क लगाया. और ए डी भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से भी हमने 5 सेंटीमीटर लगा दिया. इसको मिला के इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे और 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा. ये हमारे पास 2.5 थे और ये 5 सेंटीमीटर. वो ये हमारे पास जो ए सी है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है. तो स्टूडेंट्स, इसको ड्रॉ करने का तरीका, सबसे पहले हम ए बी को लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे. ए बी हमने क्यों ड्रॉ करा?
ये 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि बी पॉइंट पर एंगल है और बी पॉइंट ही हमारे पास इसमें है, और किसी साइड में इसमें ए सी पॉइंट है, ए एंड सी, इसमें ए एंड डी है, इसमें सी एंड डी है, बट दिस line segment we have to B point, so we will draw the first line segment AB. Okay, draw a 90-degree angle, draw a ray BX like this. Okay, and taking a 5 centimeter radius, यानी कि आपको रेडियस लेने का कंपास है 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से एक आर्क लगाएंगे इस पर, ठीक है ना, तो ए सी इक्व टू 5, यहाँ पर पॉइंट आएगा सी, तो ए सी इक्व टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा लिया आपने, दिस इज द पॉइंट सी। ओके, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे यहाँ पॉइंट, और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ए डी ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए डी और ये सभी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया स्टूडेंट्स, और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड construction of this question. Okay student, this is the part C of question number 5. AB equals to 6.5, BC equals to 4.5 centimeter, and line segment CD is equal to 4 centimeter. Line segment AD is equal to 5 centimeter and angle B equals to 60 degree. First of all, we draw the line segment in which the point B is given. So these two line segment having the point B, so we can draw first of all in both of these, one of both, यानी दोनों में से हम कोई भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, तो चाहे तो हम ए बी को भी ड्रॉ कर सकते हैं, बी सी को भी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दोनों में बी पॉइंट दिया और बी पर ही हमारे पास एंगल है, तो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का एक तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, बी पर 60 डिग्री का एंगल है, तो बी पर 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे लाइक दिस, और एक रे ड्रॉ कर देंगे बी एक्स। ओके, एंड वी आर गोइंग टू टेकिंग द आर्क 4.5 centimeter and draw an arc 4.5 centimeter from B, so you will get the point C. This is the 4.5 centimeter. Okay, and now we are going to draw an arc of 5 centimeter AD from A like this, and we are going to draw an arc of 4 centimeter from C, which intersect at D. Okay, join these, and this is the angle 60 degree, and AD equals to 5 centimeter and 6.5 centimeter, and this is the CD 4 centimeter. This is the required construction. Okay students, now you can do part D by yourself at your home. Okay students, it is enough for today, so bye bye students.